Very good evening to all of you. So, as I said, I'll be continuing with the CDS paper. The section that I'm doing is basically for the paper CDS 1 2021, which is the recent paper, and there were around 20 questions of mensuration in a row. Some of the one or two have been a concept of geometry, so we'll be covering that also. Now, why I want you to do this is a lot of you don't know how the level of the paper would be. And first of all, of course, for mensuration, what is really important is learning the question or learning the formulas actually. And after that comes the pace of doing the questions. Now, what I'll be doing is basically helping you increase your pace of the level of the questions and solving this paper. So as I start again, when we are doing the question, I would recommend you is first read the question and then pause it and then try it by yourself. When you're not able to do it, please look into the solution. How do we do it? And why your statement was correct or not, or if it was incorrect, why was it incorrect. So that will give you a better understanding of the CDS paper, and it's a live paper, so it's the best thing to go through is through the paper itself. Okay, the first question that we have is there are going to be series of 20 questions that were there. There are 20 questions of mensuration. So let's quickly begin with it without taking much time. As I said, as soon as we read the question, pause it, try it by yourself, see whether you're able to do it or not. If not, why not? And if you were able to do it, was it the shortest method or not? A cloth of 3 meters width is used to make a conical tent. Now, when I say conical tent, it's basically meaning of a cone. Diameter 12 meters in diameter. So 12 meters in diameter with a slant height of 7. My L is 7. My radius is 6 meters. This is also in meters. And the cloth is of width. So there was a cloth of width 3 meters. This is my width and this is my length, which we need to find. So now area would be same. Length into breadth is equal to the curved surface area. It cannot have the total surface area. Curved surface area of the cone is pi r L. Now my length here was, I need to find, my breadth was 3. 22 by 7, it's already given, take it as that. My radius was 6 and my slant height was 7. We cancel it. This and this gets cancelled. This is equal to 2. So x comes out to be 44 meters. That is my answer. Now my next thing why I did this is because जब आपने कपड़ा लिया उसको फोल्ड करके आपने कोन बनाया तो एरिया एरिया में कन्वर्ट होएगा. जब तक आप मेल्ट नहीं करोगे तब तक एरिया एरिया में रहेगा. अगर आप मेल्ट करते हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम में. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स, तो इसका रेडियस है आपके पास 3 सेंटीमीटर्स, is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The radius of the vessel is 6 centimeters. ये किसकी बात कर रहे हैं? ये cylindrical vessel की radius की बात कर रहा है. It's talking about the radius of the cylindrical vessel, जिसका radius 6 है. If the sphere is completely submerged in water, then by how much will the surface area of the water be raised? अब आपको उसने क्या दिया है, जब आपने समर्ज किया तो ऑफकोर्स उसके पास वॉल्यूम होएगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. अब उसने किसको डिस्प्लेस किया? एक सिलेंडर को जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. 4/3 क्यूब था तो ये 3 से कैंसिल होकर 3 स्क्वायर हो जाएगा. रेडियस स्क्वायर आपका है 6 स्क्वायर. हाइट आपने निकालना है तो हाइट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. इसको भी हम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो हाइट आपका क्या आ जाएगा? 1 is would be your answer, that is 1 centimeter. I hope everybody's found this a very easy question. It was volume converted into volume. हमने एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ. एक सिलेंडर था, उसमें हमने एक स्फेयर को ड्रॉप करना. एक सिलेंडर है, उसमें हमने एक स्फेयर को ड्रॉप कर दिया. तो ऑफ कोर्स जब स्फेयर को ड्रॉप करेंगे तो स्फेयर कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा और वो पानी क्या था? वो वॉल्यूम की टर्म्स में आ जाएगा. लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21. हमने एक सेक्टर कट कर दिया. एक सर्कल था हमारे पास जिसका रेडियस था 21, उसमें से हमने एक सेक्टर कट कर दिया. दिस इज माय सेक्टर, माय रेडियस इज 21, आई कट अ सेक्टर.
Moving ahead, the question says, if the length of the arc of the sector is 55 centimeters, if the length of the arc, अब length of the arc क्या होता है? सिर्फ हम इस पोर्शन की बात करते हैं, मैं कलर पेन से यूज कर देता हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर? तो इसका वो एरिया क्या है, सॉरी आपका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज माई लेंथ ऑफ द आर्क विच इज गिवन 55 सेंटीमीटर्स. What is the area of the sector? Area of the sector का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हमने फाइंड करना है. अब पहले जब तक थीटा अपॉन 360 नहीं आएगा तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई को हमने एज इट इज लिख दिया, रेडियस हमारा था 21 और ये है हमारा 55. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी थीटा अपॉन 360 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इज इक्वल टू 55. इसको कैंसिल कर दिया, ये 5 और ये 2, ये 3, तो थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 12, 5/12. अब थीटा अपॉन 360 आपको पता है 5/12 है, पाई आर स्क्वायर इज 22/7, रेडियस था 21 इंटू 21, 7 से कैंसिल किया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 22 इंटू 21 या फिर 22 इंटू हम 5 कर लेते हैं, 110 इंटू 21, वी नीड टू डू दैट, दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 11/2. लेट्स डू दिस, 55 इंटू 21, 55 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 से है, तो 55 इंटू 20 वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1100. अगर 20 से करते हैं इट विल बी 1100. 55 इधर आ जाएगा, 1155 डिवाइडेड बाई 2, 1155 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी 5775. दैट्स माय आंसर. आई होप दिस वाज इजी. हमें अब इसमें हमारा शॉर्टकट क्या था, थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाल दी, rather than पूरा थीटा निकालने हमने सीधा वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट वुड मेक माय कैलकुलेशन सिंपलर. एज ए सेड, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, आई एम गोइंग इन टर्म्स कि आपको शायद से फॉर्मूले आते हैं, अगर नहीं आते आप साथ के साथ इसमें से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं. एज ए सेड, आप ट्राई करें, पहले खुद पॉज कर दें, उसको ट्राई करें एंड देन सी वेदर यू गेटिंग इट करेक्ट और नॉट. अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 70. रेडियस आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर. इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ rhombus. देन व्हाट इज द साइड ऑफ द लेंथ? वायर का आपका रेडियस है 70, उसको आपने बेंड किया किस फॉर्म में, एक रोम्बस की फॉर्म में. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अगर हम बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें, या फिर हम, a wire is in the form of a circle of radius 70. जो वायर है वो आपने एक सर्कल के फॉर्म में है जिसका रेडियस है 70, इसको आपने रिप्लेस करके क्या बना दिया, एक रोम्बस. जो आपका पेरीमीटर है वो तो सेम रहेगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं 4a, कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू 70 इज इक्वल टू 2a, 10, this becomes 5, a becomes 110 centimeters. A very easy question. पेरीमीटर दोनों का सेम होगा. क्लियर? इस वायर को हमने बेंड करके एक रोम्बस बना दिया, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन एज आई सेड, टेक योर टाइम इन माइंड. If the perimeter of a semicircular path is 360, then what is the area? Now, this is, I know you'll have it wrong. अब semicircle होता है, it is like this, right? Let me just do it better. Sorry, my drawing is a bit poor. हमारे पास एक सेमी सर्कल है. Let this be the semicircle. Okay, ऐसी होएगा सेमी सर्कल. अब ये वाला जो पोर्शन है, let me just make it like that. ये आधा सर्कल है, इसका एरिया क्या होएगा, सॉरी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर. और ये जो रेड वाला पोर्शन है, मैं आपको कलर से ही कर देता हूँ,
जो ब्लैक से है उसका पेरीमीटर होगा पाई आर, और जो रेड से उसका पेरीमीटर होगा 2r। वो किसके इक्वल है? 360 मीटर्स। पाई और आर को, हमने आर को कॉमन ले लिया, we take r common, it becomes pi plus 2 is equal to 360 meters. Is that clear or not? अब हमारे पास r का वैल्यू क्या आ जाएगा? 360 अपॉन पाई प्लस 2। उसने एरिया पूछा है इस सेमी सर्कुलर पाथ का। सेमी सर्कुलर पाथ का एरिया होता है पाई बाय 2 आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कुलर पाथ का एरिया हो जाएगा आपका पाई बाय 2 आर स्क्वायर। आई होप दैट एवरीबडी गेट्स इट। एक सिंपल सी सिचुएशन है जिसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब इसको हम फर्दर अगर रिजॉल्व करें, पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस 2, 14 ऊपर गया, कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 36 और 7 ऊपर, तो हमारा रेडियस कितना आ गया? 70। अब बस इसको सॉल्व करना है। पाई बाई 2 70 इंटू 70, पाई बाई 2 इज 22/7 इंटू 2, ये 11 आ गया। 70 इंटू 70 में कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 70, 700 इंटू 11, so that would be my answer. uh, this is pi by 2 r square, so if I solve it up, this would be 770, 11 into 700 into 11, this would be 7700 is my answer. I hope this is all clear to you. As I said, इसका आपको सबसे important portion था ये वाला understanding. If you had this understanding, this would become easy. And as I said, यहाँ पे आपको लगता है कि problem हो गया है, पर problem नहीं है, बहुत simple है। उसका पर्पस ही ये देने का है, बिकॉज 22 ये क्या हो जाएगा? 14, 36 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई बाय 2 आर स्क्वायर 22/7, वो कैंसिल किया, 10 इंटू 70, 11 आपका आंसर आ गया। I'll move on to the next question. As I said, any problem, please pause again and start it. Now we come to question number 6. It's again a very simple question. Let me just go through it. In a trapezium ABCD, हमारे पास एक ट्रपीजियम है ABCD, AB is parallel to DC। ये हमारे पास एक ट्रपीजियम है ABCD, AB is parallel to DC। AB is parallel to DC, AC and BD are the two diagonals। AC and BD are two diagonals intersecting at P such that AP is 4, this is 4x minus 4, PB is 2x minus 1, and this portion is 2x plus 1। हमें AP by PC given है and we are given BP by PD। He says find the value of x. Again, it's a very simple question. All I would recommend you guys to do is use a simple property. Pause it up, think of any property that you can think of। I hope you are able to get the property। इसमें property क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। PA by PB, जो आप फिगर देख रहे हो अपनी, PA by PB, सॉरी, PA by PA by PC is equal to, जो इसके नीचे वाला है, that would be PB by PD। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। डायगोनल्स व्हेन दे बाइसेक्ट, PA by PC is equal to PB। नीचे वाला नीचे के इक्वल, ऊपर वाला इक्वल के इक्वल, वो रेशियो हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्या है? 4 अपॉन 4x minus 4 is equal to 2x minus 1 upon 2x plus 4। Let's solve it up. 8x plus 16 is equal to 2x minus 1 into 4x minus 4। अगर आप देखोगे this would become 8x plus 16, so हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरी साइड को अगर सॉल्व करते हैं, let me just solve it up. This one is something that we need to do it. It would be 8x square plus 4 minus 4x minus 8x, this would become minus 12x। अब 8x है, ये 8x plus 16 इधर है, लेट्स सी इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर minus 20x minus 12।
अब इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं, उससे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x², 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 5x-3। अब इसके सिंपल फैक्टर्स आपके पास क्या बनेंगे? अगर हम बात करें 2x², दिस वुड बी -6x प्लस x -3। सो 2x कॉमन, x-3 प्लस 1 x-3, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 3। दैट वुड बी माई आंसर, और आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा। अगर आपने उतना भी नहीं करना था और आपको ये प्रॉपर्टी पता है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, हम ऑप्शन ले लेते हैं 3। 4/4 इंटू 3 इज 12, -4 8, अगेन इसमें पुट किया 5, दिस वुड बी 10, तो ये हाफ बन गया। अगर हम 4 पुट करते तो आंसर ना आता। देखो मैं इसी में वैल्यू में 4 पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू 4, 16, 12 ये 1/3, 8 - 1 7, 8 + 4 12, ये तो नहीं हुआ, तो आंसर क्या होएगा ऐसे को, अगर आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। So let me just erase it up now, and we will move on to the next question, which is question number 7. This is my purpose is I can do it much faster. I can do it orally. My purpose is to explain to you, and you would see it actually would take less than a minute while doing it. ABCD is similar. ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ABCD is similar to DEF. The perimeters of ABC are 40 and DEF are 30. What is the ratio of BC plus CA plus and EF plus ED? अब ABC और इन तीनों अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या होता है? सेम होता है. रेशियो ऑफ साइड सेम होगा तो इनका जो रेशियो ऑफ एडिंग ऑफ साइड्स भी है वो भी क्या होगा? सेम. बिकॉज अगर ये 40:30 है, पेरीमीटर पेरीमीटर कैसे बना है? सम ऑफ ऑल साइड से ए बी प्लस, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. अब सबका रेशो क्या है? 40:30, और सिंप्लीफाई करके 4:3. इसका आंसर भी क्या होगा? 4:3. बिकॉज आप कोई भी साइड लो, आपकी इजी करने के लिए अगर आपको पता है कोई साइड सिमिलर है तो उसका जो रेशियो होएगा वो भी क्या होगा? 4:3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज इन द रेशियो have equal vertical angles and their areas their two angles are similar. तो ये क्या हो जाएंगे? Two isosceles triangles have equal vertical angles. दो एंगल सेम है तो सिमिलर हुए. एरियाज का रेशियो क्या है? ट्राइंगल 1 का है 4.84 को हम 484 लिख सकते हैं. ट्राइंगल 2 का एरिया क्या है? 521. अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स का रेशियो ऑफ एरिया गिवन है तो रेशियो ऑफ साइड क्या हो जाता है? इसका अंडर रूट. तो ये क्या है? 284 किसका स्क्वायर है? 22 का. ये 23 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो आंसर इज 22:23. 1 मिनट क्वेश्चन इटसेल्फ. अब हम मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. लेट्स रीड इट आउट. ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A. ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए. यहाँ पे ये राइट एंगल है. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. BD आपको गिवन है कितना है? 8 सेंटीमीटर्स. एंड DC आपको गिवन है 12.5. दैट मीन्स टोटल साइड हो गया आपका BC कितना हो गया? 20.5 सेंटीमीटर्स. अब वो पूछता है फाइंड AD इक्वल टू. That is the question. Take your time, take a minute, try it by yourself. A simple question. Of course, I'm going to give the solution for the same question to you, but first try it. Okay. Now, in this question, he says find AD. ये थोड़ा सा complex question है. तो complex, not in the sense too complex, but थोड़ा सा you have to use a bit of mind. आपके पास है BC square is equal to AB square plus AC square. अगर हम देखें ये राइट एंगल भी है आपके पास गिवन है, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट वुड बी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. हमने ये देखना था कि हमारे पास कुछ, अगर वो कोई क्वेश्चन में कुछ देता है उसका रीजन होता है.
अब सिमिलरली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, AC क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब आपके पास BC भी है, CD भी है, DB भी है और AD निकालना था। सो एज ए सेड स्मार्ट क्वेश्चन था ये बहुत। 20.5 का होल स्क्वायर होता है, DD स्क्वायर हमारे पास है 8 का स्क्वायर, AD स्क्वायर है और सॉरी AD स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस AD स्क्वायर जो निकालना है, और आपका DC स्क्वायर हो जाएगा 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ 20.5 का होल स्क्वायर इज 205, 420, 4225, इसको हम लिख देते हैं 422.25 माइनस 12.5, 125 का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 30, 156, 156.225 माइनस 64। अगर इसको इधर करते हैं ये हो जाएगा आपके पास, दिस वुड कम आउट टू बी 420, 20.5, 20 into 1, this would be 205 would be 10, 42 42025 होएगा, सॉरी इधर 42025। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया ये हो जाएगा आपका, ये आपका 200 आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AD would come out to be 10, square square cancel, AD would come out to be 10. So it's a smart question, not a tough question, but I really like this question because उन्होंने कुछ आपको, they try to test you with this. So simple question based on Pythagoras theorem. Now let's move to the 10th question. This would be my first part of the series. The surface area of a cube is equal to that of the sphere. Now when I say surface area of a cube, what is surface area of a cube? 6a square is equal to that of the sphere. अगर हम sphere की बात करें उसका surface area क्या होता है, 4 pi r square. If x is the volume of the cube and y is the volume of the sphere, x is the volume of the cube, आपका volume of cube होता है a cube, volume of sphere होता है आपका 4/3 pi r cube. So what would be x square by y square, इसका square पूछता है वो. Of course ये दिया है तो इससे related कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. So let's see how do we do it. What is a square by r square? That will be 4 pi upon 6. If we cancel it, it will be 2 pi upon 3. Now x square upon y square is equal to, इसको हम लिख सकते हैं a square upon r square और क्यूब को बाहर, इस चीज को मैं लिख रहा हूं बाहर को, इसको अगर आपके लिए इजी करने के लिए, let me do it like this so that I explain it better. Can I write it as a6 r6, 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 because square है, 16 pi square. I hope now you are able to get it. अब can I write it as a square upon r square whole cube is equal to into 9 upon 16 pi square. Now what is a square r square? It is 2 pi by 3. अब इसका क्यूब करना है, ये हो जाएगा 8 pi cube. 9 into 3 is 27 into 9, 16 pi square. ये cancel, this would become 2, pi से cancel, this would become 3. So answer is pi by 6. That would be my answer. A simple question, but you have to understand why they gave it like this. अगर आप यहाँ से कर लेते, again as I said again, if you were able to do it from here, your calculation would have been easier. That is our job here at New Careers. Now, when we are at New Careers, we'll be teaching you this, how to do it. This is all on practice, my friends. So I'll be continuing with the series. This is my first set. I'll be continuing now with the second series of the mensuration questions. You can continue with it. As I said, take your time. 1 minute दो खुद को दो कैसे solve करते हो आप. And if you have any query, I have given it. I've given our website and everything. You can contact us and get to know more information.